We are, as we said, in the post-lunch session, and it is about the regional languages. And my background is linguistics, so we'll be dwelling among Bajika, Maghi, Angika, and I am from Mathli background, so we'll be interfering something into Mathli as well. But we are here certainly to learn from these such luminaries from Sri Jai Ram Singh ji and Sri Umesh Prasad ji, such a great scholars. I have to say a few words before we begin our conversation about the Lost Love, and we will be looking at the challenges and opportunities in preserving Bajika, Maghi, Angika in modern Bihar. Sri Jairam Singh ji is a former Indian Air Force veteran with 26 years of distinguished service and is now serving as Rajbhasha officer in Indian Audit and Accounts Department, Mumbai. Originally from Vaishali, he pursued higher education along his military career, earning multiple postgraduate degrees. A prolific critic and writer in Hindi and Bajika, he has authored over 100 short stories, poems, and a forthcoming novels in Bajika. He is also a classical singer and composer with a published bhajan album to his credit. Known for his humility, he is deeply committed to preserving India's cultural and literary heritage. Thank you very much, sir. Thank you for being here. We have another scholar, literary figure with us, Umesh Prasad ji. Sri Umesh Prasad Umesh is a famous Maghi writer and native of Nalanda itself. He has immensely contributed in Maghi literature. He has written many books such as Drishti Patrika, Manjar, Vichar Drishti, Maghi Patrika, Wang Magdi, and so many more. He has worked as secretary Akhil Bhartiya Maghi Mandap and Nalanda District Hindi Sahitya Sammelan, and worked as a director with several eminent organizations also. So we would like to give a big round of applause to both the scholars. Before we begin the session, allow me to offer a brief framing of the theme we are engaging with today, that is the lost love. There is a kind of love we rarely speak about. No romantic, no loud, but intimate, inherited, and deeply emotional. It is the love for our Mai Boli, the language of our grandparents sang in, scolded in, prayed in, and dreamed in. A love we did not abandon overnight, but slowly drifted away from. When we speak of loss here, we are not referring to a sudden disappearance, but to a gradual distancing from our mother tongues. Among those, Bajika, Maghi, and Angika, languages that once shaped everyone's lives in Bihar and continue to be spoken by millions, yet remain absent from our formal institutions. Maghi, Angika, and Bajika are among the other languages spoken in Bihar, each with its unique dialectical nuances and literary heritage. These languages, often overshadowed by the dominance of Hindi, carry within them the stories and sentiments of generations, preserving the essence of Bihar's linguistic identity. Bihar, as we know, is a region of extraordinary linguistic destiny captured in the proverb Vani Badle Char Kos, Pani Badle Aat Kos. So with this background, I would like to request Umesh Prasad ji to reflect upon his journey first, and then we can go for another part of the discussion. So open to you, Umesh ji. बड़ भाग्यशाली हम ही जे ई पुनीत यज्ञ के आज आयोजन भी रहे। एकरा में देश के लगभग राज्य के मनीषी, खूब पढ़ल लिखल लोग, सरकार के बड़का बड़का पद पर सुभूषित सुशोभित होवे वाला लोगन सब ई अतीत के बोली के
और जे विलुप्त हो रहे आज उपभोक्तावाद संस्कृति में, एकरा उजागर करे लेल जे इनकर के ई व्रत है, इस साहित्य के महाव्रत पर सभागार में मंच के आगू घंघेटले हमर सब भाई बहन लोग, नालंदा के लोग के तो बुझे में दिक्कत न हो बहुत, मुदा ऐसन एगो सौभाग्य हमरा है कि हम जहाँ आज बैठल ही ई मगध राज्य के नाम से पूरे दुनिया में जानल जाल। और कोई भी मगध राज्य के भाषा के ऐसा समझो कि मागधी भाषा है, मागधी से अपभ्रंश होते होते मगही भेली। हमर बोल चाल के भाषा, जब माय के गोद में हम जन्मे हिए, जब बउआ नुन्नू कुछ बोले के लायक होवे है, तो सबसे पहले अपन मैये के भाषा, अपन क्षेत्रीय बोली, क्षेत्रीय भाषा में ही ओकरा बोध करावल जाए। बोली ही बउआ मैया। भगवान कृष्ण, मगध के इतिहास इतना गो पुराना है जे हम 7,2500 वर्ष पहले तो बढ़िया से बता सकिए कि यहाँ के महाराज जरासंध जो हलथिन, ई धरती जे है तपोभूमि है, ई धरती जे है वीर बांकुरा है, ई धरती जे है कला, साहित्य, चित्रकला, भाषा और एगो ऐसन यहाँ के हमरे तोहरे ऐसन के माता पिता जे खेती बाड़ी कर रहे थे, उ अपन अनाज दान करके ऐसन एगो यहाँ विश्वविद्यालय चल रहा है जखनो खंडहर के रूप में है, और देश दुनिया के लोग ओकरा देखे ला बहथिन, वह नालंदा विश्वविद्यालय। सरकार आज एक पुनरावृत्ति भी कल के है। राजगीर में फिर नालंदा विश्वविद्यालय के लिए लंबा चौड़ा जगह लेल गेले है, और जे बीतल समय हमर जे विलुप्त हो गए, डूब गए, ओकरा फिर से उगावल जा रहा है। हम एक बार ऐसा पुनित यज्ञ में अपने लोग जे मंच के आगू में बैठल हथिन, उनका हम प्रणाम करिए, गोड़ लगाइए। निहोरा हमर ये होते कि अपन अपन भाषा, अपन अपन माय के बोली जे जन्मते सीखल है, ओकरा से प्रेम होवे के चाहिए। आज क्षेत्रीय बोली उपेक्षा के शिकार है। हम दैनिक पत्र में पढ़ते रहे, समाचार पत्र में कभी कभी आवे है कि मगध के क्षेत्र के जे बुतरून सब पढ़ा हथिन सरकारी विद्यालय में, उनका पहला से दिल जाए एगो मगही के किताब, मुदाई बस उतने तक रह जाए, एकरा कोई भाषागत स्वरूप देवे ले आगू नहीं आ रहे थे। इसे हम दबल ही कुचलल ही। एगो जरी गो लाइन है कि अगर कहवे तो अतिशोक्ति नहीं होवे के चाहिए। यहाँ पूरे देश के विद्वान लोग होथिन और सब साहित्य के ई कार्यक्रमे है नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल, जरा हम मगही में कह सकिए कि महान साहित्य के पर्व त्योहार। ई पुनित यज्ञ में जितना उपस्थित लोग हथिन, हमरा लगे है कि बिहारे ने नालंदा के आसपास के ही ज़्यादा लोग एजा मौजूद हथिन। तो हम अपने लोग से ई कहबे कि निराश होवे के नहीं चाहिए। जब हमार बोली के रूप में मगही के समेट दिल गए, जबकि भाषा के उठना और गिरना ई क्रम चलते रहा है, उठान और पतन कोई भी भाषा के होते रहा है। आध्यात्मिक काल में विश्व भाषा के रूप में स्थापित हले संस्कृत। आज हिंदी भी तनी सा अतिशोक्ति नहीं होवे कि हमारे दुर्भाग्य है कि पूरे राज्य में आज भी जे श्रद्धा से कि हमार भारत के भाषा हिंदी है, हिंदुस्तान के भाषा हिंदी है, एकरो कहे में, एकरो स्वीकारे में कुछ राज्य के लोग कुनमुना हथिन। कहे का मतलब उनका दिक्कत हो गए, उनकर शिक्षा के जे ऊंचाई है ओकरा में हीन भावना समझाते। इसे मगही या जे भी क्षेत्रीय बोली है बिहार के 4 गो ऐसन बोली है, अंगिका है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, बच्चिका है। लेकिन एगो बात ऐसन है
कि हमर संबंध सोचो जरासंध के हले ईस्वी सन 2025 से 5000 वर्ष पहले कृष्ण के ननिहाल से मने कंस जे हलथिन हमर जे जरासंध महाराज हलथिन उ ससुर हलथिन। बोलहो तोहर ई मगध के इतिहास कते पुराना है और समय हमरा के कम मिले है। विद्वान लोग एकरो से आगू बड़ी अतीत बड़ी पुराना ई खूब दबदबा में हले। पूरे दुनिया जेकर चलती रहे है ओकर पहरावा ओकर खान पान ओकर बोली चाली भाषा सभ्य ओकरा ले लला है। कहे के मतलब है एगो बात कि चमत्कार के नमस्कार है। मने मगही में इतना कहावत है जेकरा हिंदी के मजबूती देवे में जेकरा मुहावरा कहो। कोई भी भाषा समृद्ध और उत्कृष्ट होवेले मुहावरा के बड़ी योगदान है और वो मगही में भरल है। मगही के पास इतना अथाह शब्द है कि बोलते बोलते भी पार न लगे है। और एकर शब्द कहाँ बढ़िया बढ़िया छिपल नुकल है। जैसे तू चल जाओ दलित समाज में और दलित समाज के 2 4 गो आदमी के आपस में बात करते देखो वो जा इतने निम्न निम्न नीक नीक भाषा जे मगही के गहराई के भाषा होवे है जेकरा कहानी और कविता में अगर देल जाए तो ओकर अर्थ समझे में हिंदियो भाषी के या और भी जे हमारे क्षेत्रीय भाषा भाषी हथिन कुछ दिक्कत होवे लगे। लेकिन एगो सौभाग्य है मगध के मगही के अभी हमारा साथ आ रहा थे एक युवा गाड़ी पर तो कहते हैं हम उड़ीसा के ही। हम कहलिए उड़ीसा के लोग के जे हम बोल रहा है मगही ये समझ में आवा हो तो जी हाँ ये तो हिंदी भाषी के समझे में दिक्कत नहीं। हम कहलिए उड़िया होने की समझे में दिक्कत हो जाए। मने इतना एकर चलती है मगध के कि एकर भाषा बोली के समझावे की जरूरत नहीं है। ऐसे भाषा के तो चारे कोस पर बदलाव आ जाए। हमरा नालंदे में पश्चिम जाके हम सब बोले हिए खैलथिन ऐलथिन गेलथिन ऐलहू है खैलहू है गेलहू है। नालंदा के लोग ऐल हो गेल हो तो ई आधार पर अगर हम भाषा नालंदे में बांटे लगी बढ़िया के मगही अलग है अलग टोन होकर है। हमरा मुद्रा प्रसाद नवीन के कविता के टोन अलग हले लेकिन सब मगही हले। तो तनी तनी जब हम अपन क्षेत्र में बदल रहिए हम ही कुल एक्के भाई बहन एक्के गाछ के सब पत्ता फूल डाली। लेकिन जैसे जैसे दूर जाइए उनकर जे संस्कृति होवे है उनकर जे बोले चाले के टोन होवे है कजे मैथिली कहला जाए कजे भोजपुरी कहला जाए कजे मगही कहला जाए ऐसा हमरा लगे है। चूंकि मगध इतने ने विकसित राज हले कि एकरा पूरे भारत से एकर नाटा कुटुम हलथिन सबसे एकरा संबंध है। एकरा समझावे की जरूरत नहीं है। आज भी हिंदी में अगर एकरा कहो कि बोली है तो हम तोरा बतावे वो सब लोग जब पढ़ले लिखल हथिन बोली है भाषा नहीं है भाषा है। एगो सुग्गा पेड़ पर है एगो सुग्गा पेड़ पर है एक तोता पेड़ पर है। हिंदी हो गई एगो सुग्गा पेड़ पर है अनुवाद होले हिंदी में एगो तोता पेड़ पर है। अंग्रेजी में अनुवाद देयर इज ए पैरोट ऑन द केज बोलो एकर अनुवाद होवे है। एकरा कैसे हम भाषा नहीं मानबे। लेकिन हमरे लोग जे पढ़ल लिखल हथिन बड़का बड़का पद पर हथिन उनका बड़ी सुने में खराब लगे। लोग कहथिन कि अगर ये भाषा है बड़ी पुरान भाषा है अब बड़ी लोग एकरा से लड़ाई थलथिन और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल हलथिन तो आज भी भाषागत जेकर स्वरूप है ओकरा अपनावे ले हमर पढ़ल लिखल लोग के मानहानि एकरा से हमरा बचे पड़ते। अपन माए से ज़्यादा विकसित हमर बेटा हो जाए पोता हो जाए तो कि माए के प्रति श्रद्धा न होवे के चाहिए। हमारे माए बाबूजी के जे खाए पिए रहे सहे के अनुशासन के जे संस्कृति हले ओकरा आज नहीं रखे के चाहिए। लेकिन हम सब भुला जाइए आई उपभोक्तावाद के संस्कृति में हम इतने ललाल ही ओकरा ले कि आपा धापी के लिए एगो जरी गो लोग इतने बढ़िया निकलती हंसी बढ़तो कि बोलो आज के जुग की है
गाढ़ा जीन्स सस्ता हो और फटले जीन्स महंगा। तो ऐसन उपभोक्तावाद संस्कृति में आज जे पढ़ल लिखल लोग, जे दूर दराज के लोग, जिनकर नमस्कार हो रहे हैं, उ जे बोले हथिन ओहे संस्कृति हो जाए। ई तरह से हमारे पुरान संस्कृति जे भी भारत के बिहार के गांव गिराव में है वो विलुप्त हो रहे हैं। हम गोड़ लगे ही आज के जो मनीषी लोग जुट करके सौसे भारत के लिटरेचर, साहित्य आ भाषा के जे डूब रहे हैं ओकरा जगावे के जे पुनित कार्य केलथिन हैं, उनका हम जितना धन्यवाद दिए उतने कम पड़ते। बोले के जत्ते बात हो गई, बहुत कुछ बोल सके, समय के पाबंदी होवे के चाहिए। हम इतनी सनी बात बोल के अपन बात के विश्राम। सर अभी अभी आपको और भी बोलना है स्टेज पर, लेकिन इससे पहले हम आपकी तरफ डिफरेंशिएट जो बोली का आपने वर्णन किया है उस पर जो यंग जनरेशन है, आई एम सो हैप्पी टू सी कि नए चेहरे हैं, उनको पता चलेगा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या थी, हम कितने सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी थे। जो आपने जिक्र किया उस पर भी चर्चा होगी। इससे पहले मैं जयराम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने साहित्यिक सफ़र के बारे में थोड़ा बता दें, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। मगध की धरती पर इतने बड़े मागधी विद्वान के बगल में आपने बैठा दिया और तब बोल रहे हैं कि कुछ बोलिए। मुझे यहाँ से वापस घर भी जाना है। ये तो हास्य विनोद की बात है। जैसे कि मेरे परिचय में वारसी सर ने आपको बताया, मैं एक पूर्व वायु सैनिक हूँ। वही वायुसेना जिसने ऑपरेशन सिंदूर को अभी अंजाम दिया है। और आप में से अधिकांश बच्चे उस समय शायद दुनिया में होंगे ही नहीं जब करगिल का युद्ध लड़ा गया था 1999 में। मैं आपकी प्रशंसा के लिए नहीं, आपकी तालियों के लिए नहीं, लेकिन फख्र के साथ, गौरव के साथ मुझे आपको यह सूचना देनी है कि मैं उस कारगिल युद्ध का जीवित सेनानी हूं। बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चों को यहाँ बिठाया गया है। बिहार से बाहर के भी बच्चे हैं क्या इसमें? नहीं ना, लगभग बिहार के ही बच्चे हैं। अभी जैसे उमेश सर ने मगही में अपनी मातृभाषा में बहुत ही मार्मिक बात कही। यदि आप लोग आज्ञा दें तो जैसे इन्होंने अपनी मातृभाषा में कुछ बातें कही, मैं भी अपनी मातृभाषा में कुछ कहूँ आपको। आज्ञा है? ऐसे आपसे हंसी मजाक का मेरा रिश्ता है। नालंदा में मेरी बेटी ब्याही है। मुझे लगता है कि मैं अपने समधी के बगल में बैठा हूं। तो उमेश सर, आप हंसी मजाक के लिए भी तैयार रहिएगा। तो मैं हाजीपुर के पास, हाजीपुर और उसके उत्तर जो इलाका है उसको बज्जिकांचल कहा जाता है। वैशाली जिला में एक गांव है दयालपुर, वहां का रहने वाला हूं। तो अब अपनी औकात पर आते हैं। मेरी मातृभाषा बज्जिका है। कैसन है तू सब हो? बढ़िया है ना? हालचाल ठीक ठाक? चला, यदि तुस हमर साथ दहु तो मातृभाषा के महत्व के बतावेला और वारसी सर के सवाल के जवाब ओमे निहित है, वो बतावेला। अपन बज्जिका गजल के दूगो लाइन सुनैयो। आज्ञा है? देखा, तू भोजपुरी बोलत होब, मगही बोलत होब, अंगिका बोलत होब, मैथिली बोलत होब, बज्जिका बोलत होब, कोई बात ना। बिहार के ई पांचों छो भाषा में एक बेहद खूबसूरत तत्व है। भले ही हमरा मगही बोले न आवे,
लेकिन उमेश सर जे बोल रथिन से सब समझ गेलिए। हमरा भले ही मैथिली बोले ना आवे, लेकिन मैथिली में तू जे बोल बहु सब समझ जेबो। अंगिका बोले ना आवे, लेकिन अंगिका की मैं बोलहु हम सब समझ जेबो। तो जो अंतर बुनावट बिहार के अपन पांचों भाषा के अंदर में व्याप्त है, ये बात ये देश के और कोनो राज्य के साथ लागू न है। ये बात पर तू सब जोर से ताली बजाओ। मातृभाषा अब जैसे यहाँ सर अपने तो अच्छा एगो अपने सर के बात बताओ। वारसी सर दरभंगा के रहने वाले हैं, तो मैं पहले कांप रहा था। एक तो समधियाना में बिठा दिया गया, दूसरे उमेश सर के बगल में बिठा दिया गया। अरे लड़के का बाप क्या होता है आप सब लोग जानते हैं ना, हैं? लेकिन राहत तब मिली जब मुझे पता चला वारसी सर दरभंगा के रहने वाले। हाँ, तो लगा कि कुछ तो अपना भी है यहाँ पर। तो मंच पर बहुमत में हम ही हैं सर। ठीक है। तो विषय रखा गया है द लॉस्ट लव। यंग लोग यहाँ हैं, अच्छा बताओ, अच्छा तुम लोगों की उम्र में कभी मैं भी था। हाँ, आज बाल पक गए हैं, झुर्रियाँ लग गई हैं, लेकिन ये तो मैं जानता हूं ना कि तुम्हारा युवा हृदय क्या सोचता है। जब ये धड़कता है तो किसके लिए धड़कता है? ILU का अर्थ क्या होता है? ये तो मैं समझता हूं ना, वह जीवन जी चुका हूं। लेकिन अब ये कहते हैं द लॉस्ट लव। क्या प्यार कभी खो पाते हैं हम? लव कभी लॉस्ट होता है? अपने पास रहे या न रहे, प्यार कभी खोता नहीं। अरे सब प्यार करने वाले हो, ताली नहीं बजा रहे हो यार। मैं तुम्हारे हृदय की बात बोल रहा हूं। बोलते हैं ना, फर्स्ट लव इज द रियल लव। पहली नजर में जो प्यार होता है, भले ही शादी तुम्हारी किसी और के साथ हो जाए, उसको कभी भूल नहीं पाते। जोर से बोलो। हाँ, ये बात है। तो लव इज नेवर लॉस्ट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, मातृभाषा। अरे हम तो भुला गए कि हमरा बजिका में बोले के है। ठीक है, अच्छा जब हम भटक जाए तो बता दिया, तू सब टोक दिया भाई। कभी हम अंग्रेजी में बहक जाए, चूंकि देखा वायुसेना में रहली है, तो देश के लगभग 12-13 गो भाषा हमें हम बोले ले। हम तमिल भी बोले ले, हम कन्नड़ भी बोले ले, बंगला भी बोले ले, असमिया भी बोले ले, अभी महाराष्ट्र में होती मराठी भी बोले ले। ठीक है, बिहार के तो 5 भाषा बोलबे करे छी। ठीक है, तो जब हम भटके लगाम, देखा भाई तू सब बाल बच्चा के बराबर होता। अब मैं युवा पीढ़ी का फैन हूं, मुझे इन बूढ़े पके बालों से कोई खास मतलब होता नहीं है। वो मतलब क्या बोलेंगे, अरे हमारा जमाना में ऐसा रहा, अरे गोली न मारा अपना जमाना के, नया जमाना देखा भाई। हाँ, तो तू सब नया जमाना के प्रतिनिधित्व करे छ, तो हमरा टोक दिल करिया। एगो कहलथिन कि जे मातृभाषा के महत्व है, ये हमर भावना के संप्रेषण है, सब बात उमेश बाबूजी कहलथिन से हमर पूरा समर्थन है। लेकिन एगो बात हम पूछे छियो तोरा से, सबके तो अपन अपन घर में माई होथुन ना, बिना माई के तो कोनो न होए बा। अरे जोर से बोला भाई। हाँ, बिना माई के कोनो न होए बा। अभी भले ही बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा सुंदर होए, हेमा मालिनी सुंदर होए, माधुरी दीक्षित सुंदर होए, कोनो तोरा माई से ज्यादा सुंदर तोरा लेल है कि? बात के पकड़े के कोशिश करी है। न तोरा माई से ज्यादा सुंदर कोनो है, न तोरा लेल तोरा माई के बराबर ममता कोनो में है, न कोनो दोसर तोरा बारे में उतना सोच सकैया, तोहर हृदय के स्पंदन के महसूस कर सकैया जितना तोहर माई करे छथ। यह मातृभाषा है।
गजल के 2 लाइन सुना बज्जिका है समझ में तो एबे करता हो। मीठ मनगर मन मुताबिक मनहर अपन बज्जिका। बज्जिका हमार मातृभाषा है तो बज्जिके के लेल बोलबो। जे मघी वाला होब से मघी रख लिया ओकरा जगह पर, मैथिली वाला हो मैथिली रख लिया। हमारा कोनो भाषा से प्रतिद्वंदिता के पक्ष में हम कभी न रहली। हम ई बात के प्रबल समर्थक हती। कोई भी भाषा और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के जमाना में यदि हम चाही कि हमर बज्जिका पर मैथिली के प्रभाव न पड़े तो हम बज्जिका के लेल इंसाफ न कर रही। यदि चाहे छथ कि मगही पर बज्जिका के प्रभाव न पड़े ती मगही के हित न चाह रहा हतन। वैसे ही हिंदी के यदि हम कूप मंडूक बना दियो कि हमर अमेरिका के बोली के प्रभाव हिंदी पर न पड़े, हिंदी के हम अहित कर रही है। अपन भाषा के दरवाजा खोल के रखा, ताजा हवा आवेदा आ अपन माए के साथ के आनंद ला। मीठ मनगर मन मुताबिक मनहर अपन बज्जिका। मातृभाषा माई हमर सुन्नर अपन बज्जिका। पूर्ण सक्षम है निरंतर भाव संवेदना भरल। पूर्ण सक्षम है निरंतर भाव संवेदना भरल। बज्जिगन के राजभाषा रहल अपन बज्जिका। प्यार ममता भाईचारा ई भाषा में अर्चना। बउआ सब ई बात के पकड़े के कोशिश करिए, ई शेर तोरे लेल है। प्यार ममता भाईचारा ई भाषा में अर्चना। दिल के वाणी दिल तलक ले जाए अपन बज्जिका। ठेठ देहाती कहू या अब कहू एडवांस भी। उमेश बाबू कहलथिन जे मगही देहाती लोग कहै छै, वो देहाती लोग के कहबै जे मगही आधुनिक भाषा है। आधुनिक कोई कौन सी संवेदना है जो मगही में नहीं आ सकती है? मैं बज्जिका का विरोध करने वालों से यही पूछता हूं, एक भी कंप्यूटर की बात बताओ जो मैं बज्जिका में व्यक्त नहीं कर पाऊं, तब मुझे बताना। तो ये शेर ले जाइए अपने घर कि ठेठ देहाती कहू या अब कहू एडवांस भी। जानकी के कंठ से निश्रित है अपन बज्जिका। काव्य सरिता या कहानी लेख हो वृत्तांत हो। काव्य सरिता हो कहानी लेख हो वृत्तांत हो। धाख जेकर लोग माने वो है अपन बज्जिका। आंख खोले के घड़ी से लेके आजुक दिन तलक। जब से हम आंख खोल ली दुनिया में जन्म के समय, आंख खोले के घड़ी से लेके आजुक दिन तलक माई संजे प्यार देलक ऊ है अपन बज्जिका। और अंतिम शेर हो जे बज्जिकांचल के रहे वाला लोग सब होबा उनका लेल विशेष रूप से कि बज्जिका के मान अपन माई के सम्मान है। बज्जिका के मान अपन माई के सम्मान है। लिख पढ़ बज्जिका आ सुन अपन बज्जिका। मीठ मनगर मन मुताबिक मनहर अपन बज्जिका। मातृभाषा माई हमर सुन्नर अपन बज्जिका। अब वारसी साहब पूछू जे पूछे लावे। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के, बड़ नीक बाजली अहाँ। कहलहुँ पहले के लैंग्वेज कोई भी भाषा है बोली है कोनो में बाजि सकै छी, कोनो में समझ सकै छी। यंग जनरेशन सर बहुत बहुत नीक। जो मातृभाषा से बढ़कर कोई भाषा नहीं है। ये कॉग्निटिवली प्रूवन है कि अपनी मातृभाषा में जो अभी हमने इससे पहले के सेशन में देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो रही थी, लेकिन हर चीज़ तरक्की के साथ साथ आगे बढ़ती है। और मैं जयराम जी की बात से सहमत हूँ कि कोई ऐसा टर्म जो हमारी भाषा में नहीं हो वो बता दे,
तो हम कहें कि हमारी बोली या भाषा कमज़ोर है, वो नहीं हो सकता। लेकिन जो मशीन नहीं कर सकती, अगर मशीन कर ले तो ह्यूमन को रिप्लेस कर लेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेंटिमेंट्स है, हमारी फीलिंग्स है, हमारी संवेदना है, जो हम व्यक्त कर सकते हैं, वो हम अपनी मातृभाषा में ही व्यक्त कर सकते हैं। मैं 15 साल अमेरिका में पढ़ाया हूँ, लेकिन देखते हैं वहाँ का एक कल्चर अलग है। वहाँ के लोग अपनी भाषा से भी उतने ही प्यार करते हैं जितनी हम लोग करते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे आश्चर्यचकित बात ये होती है, जब उन्हें पता चलता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट लिंग्विस्टिक नेशन इन द वर्ल्ड, तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि इतनी सारी बोलियाँ, इतनी सारी भाषाएँ के बोलने के बाद भी लोग एक-दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे संचार करते हैं, कैसे अपनी बातों को एक-दूसरे तक पहुँचाते हैं। तो ये होती है जो उन लोगों को, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देश जो है ना, अगर 10 साल पहले तक देखें, या तो मोनोलिंगुअल थी या बहुत कम बाइलिंगुअल। जो हम हैं लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री हैं, उतना कहीं भी नहीं रहा है। अब शायद माइग्रेशन की वजह से जो है मल्टीलिंगुअलिज़्म का जोर यूरोप में भी और अमेरिका में भी बढ़ रहा है और लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। मल्टीलिंगुअलिज़्म इज़ एन एसेंस, मतलब हमारी शक्ति होती है, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती है और कम नहीं करती है। जो कहते हैं कि मोनोलिंगुअल अच्छा करते हैं, मल्टीलिंगुअलिज़्म इज़ एन एसेट फॉर अस। और वहाँ पे जो एक चीज़ जो यंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स, उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप कोई भी दूसरी भाषा ज़रूर सीखें। अमेरिका में यूनिवर्सिटी के करिकुलम में होता है कि आपको एक दूसरी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है या दूसरी कोई सी भाषा सीखनी है। तो उससे वो जो साउथ एशिया में रिसर्च करना चाहते हैं, जो ग्लोबल साउथ की बात हो रही थी, तो वहाँ पे वो लोग उसी भाषा में सीखना चाहते हैं ताकि वो जब रिसर्च करने आए, घूमने आए, तो उनको बात करने का ज़रिया मिले उस भाषा में, और जो मटेरियल कलेक्ट कर सकें वो उनका अपने हिसाब से हो। तो इसलिए भाषा सीखना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। अभी देखिए, हम मैथिली में बोल सकते हैं, ये बज्जिका में, वांगिका में, तो हम सब एक-दूसरे को समझ रहे हैं। और ये है कि अब ने जो सबसे बड़ी बात अभी हुई है बहुत सालों के बाद, एनईपी 2020, सब लोग सहमत हैं, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया है, फर्स्ट टाइम होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, मदर टंग, किसी भी टर्मिनोलॉजी को आप दीजिए, अब फोकस आ गया है कि हम वी कैन नॉट इग्नोर एनी मोर द रीजनल लैंग्वेजेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको साथ लेके आगे बढ़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। और एजुकेशन उसी मीडियम में हो तो वो सशक्त मीडियम मानी जाती है। ये कॉग्निटिवली प्रूवन है, इसलिए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं उमेश जी से, जो लिपि की बात होती है, अक्सर लिपि के बारे में चर्चा होती है। तो जो आपने लिखना शुरू किया, जो आरंभ किया, कहीं आपको ऐसा लगा कि क्या आपके लिखने में कोई रुकावट आ रही है, कोई संकोच हो रहा है कि अगर इस लिपि में नहीं लिखते तो जैसे कायथी की बात चल हो रही थी, फिर देवनागरी की बात आई, तो इसमें आप आपकी जो जर्नी रही है, आपका जो लेखन रहा, उसमें कहाँ तक आपको सहयोग आया, या आप क्या सोचते हैं कि किस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए? बड़ी निक बात अपने कहलथिन और बड़ी एकरा पर गौर करे के चीज है। आप बतावे के पहले हमर जे सुनताहर लोग हथिन, उ सभे बात जान रहलथिन, ओकरे तोहरे बतिया के हम दोहरेगो। जितना भी सबसे पुरान भाषा कहल गेले है संस्कृत के जननी। संस्कृत से लेके हिंदी, हिंदी के आज, हिंदी के बाद हमर जे बिहार के हिंदी के मजबूत बनवे वाला भाषा, क्षेत्रीय भाषा, चाहे बचका हो, अंगिका हो, मैथिली हो, अगर अभी भी तो नौमा दसवां के विद्यार्थी होता है या गार्जियन, तो उनकर तो किताब देखो, बगैर लोक भाषा के 100 नंबर के आज भी सीबीएसई में भी हिंदी पढ़ना जरूरी है, 10वां में भी और 12वां में भी। तो एकरा में तो देखब हो, कोई भी भाषा के उत्थान पतन में हमरा इतना भाषा के संस्कृत सहित हिंदी, मगही, अंगिका, भोजपुरी, मैथिली, बचिका, सब के भाषा के लिखे ले देवनागरी लिपि जी, सब हम सब देवनागरी में लिखे ही। इसे जयराम बाबू इतने हृदय के गुदगुदावे वाला बात और रोम रोम के पुलकित करे वाला बात कहा हथिन कि हम सब लगे हैं न कि एक्के मट्टी से कुल गढ़ल ही, तनी तनी दूर दूर होकर के हम जे अपन बोली भाषा के प्रयोग कर रही है,
एगो इहो देखो समझौता सबसे लिपि हमर एक है। अभी हमर सभे विद्वान साथी जे दुओ बैठल हथिन, हम तो सभ्य से बूढ़गर लगे ही, उम्र ज़्यादा हो सका है, लेकिन विद्वता और योग्यता और ज्ञान और जानकारी में अभी जयराम बाबू कहलथिन विनोबा जी 36 भाषा जाना हथिन, तो 20-22 भाषा तो हमरा जयराम बाबू बता दें कि हम जाने। तो अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा ढेरों क्षेत्रीय भाषा, संस्कृत सहित जो वेद के भाषा है वैदिक काल में, वो पूरे दुनिया पर राज कर रहे। ओकर बाद हिंदी आए जे ते लोकप्रिय हो लेकर, यही कारण है हम हिंदी में बनावट के ख्याल से 4 गो भाषा एक समय लिए, इसे लोकप्रिय हो गए। तत्सम यानी यदि हिंदी लगे कि लोग के हिंदी के जानकारी है, तो हिंदी के वो घोषक जो हुआ हथिन, हिंदी के जो कहानी लिखे वाला हुआ हथिन, कविता लिखे वाला हुआ हथिन, वो लिखा हथिन, ओकरा में शब्द भरा हथिन तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो संस्कृत के जो असली भाषा है ओकरा जस के तस, जैसे घी तत्सम, घीर्त कह दिलिए तो तत्सम, और घी कह दिलिए तो तत्भव। तो ई तरह से अपन ई हिंदी के मजबूत करे लेल हमर क्षेत्रीय भाषा के योगदान है। अगर तुलसी के अवधि रामायण के अवधि में लिखल थिन, विद्वान आदमी संस्कृत के हलथिन गोस्वामी तुलसीदास, अवधि में लिखला के बाद राम कथा जितना सामान्य हो गए, ई लोक साहित्य के मजेदार उदाहरण। आज लोक भाषा या सब भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा विदेश है और देश है, हम विदेशियों भाषा के खूब पचा रहे हैं। हिंदी में 25 गो 30 गो भाषा बोलल जाए, रुमाल फारसी बोलो, रुमाल का जे सीखे के जरूरत है, सभे लोग मगहियों में बोलो हो, हिंदियों में रुमाल के प्रयोग हो गए। साफी जल्दी लोग नहीं कहते, रुमाले चर्चित थे। तो ऐसा कोई भी भाषा, आज उर्दू भी एक समय हमारे देश में जब उर्दू संतल थले, तो गांगी जमनी जैसा हमरा प्रेमचंद कथा सम्राट के कहानी जत्ते प्रिय लगे है, का है तखने दुओ में साथ बैठना खाना बोलना हो गए, तो जुम्मन हलथिन अलगू हलथिन, दुओ के भाषा के प्रेमचंद ओकरा जे गौवा में बोलल जा रहे, गौवा के 2 गो दोस्त 2 गो मजहब वाला जो बोलथिन, ओकरा लेकर के लिखलथिन पंच परमेश्वर। तो ये लोक भाषा के बहुत बड़ा सहयोग है। और देवनागरी पर हमरा से कहलथिन, तो देवनागरी बिहार के और भारत के भी अधिक से अधिक, एक उड़ीसा के युवा मित्र हलथिन गाड़ी पर, खाली उड़ीसा के कुछ को लिपि तो देवनागरी है, माने क्षेत्रीय भाषा अधिक से अधिक देवनागरी में लिपि में लिखल जा रहा है। और देवनागरी जो है संस्कृत के भी देवनागरी है, ये देव भाषा है। और देवे भाषा से हम सब टूटते टूटते क्षेत्रीय भाषा और भारत के आज राष्ट्रभाषा के सपना देख रही है, अभी तक राज्य भाषा में है, कहिया पूरा होते, ये तो हमारे विद्वान लोग के भी जिम्मेवारी है। तो मूलतः अधिक से अधिक भाषा के देवनागरी। थैंक यू उमेश जी। बहुत सारे लोग हैं और वो बहुत इंजॉय कर रहे थे अभी, खास करके जयराम जी की और उमेश जी के बातों को, तो जो वो बात बता रहे थे, तो ये मैं चाहूँगा कि 2-3 सवाल मैं प्लीज हैंड एंड टेक। सर, ये एक सवाल था कि जिस तरह अभी जिस भौगोलिक क्षेत्र में हम लोग की मगही भाषा रही है, तो अगर प्राचीन काल में जाएं, चाणक्य के समय से लेकर जो भगवान बुद्ध थे, या अगर और पीछे चले जाएं तो जरासंध जी की, तो वो किस भाषा में उस समय इस क्षेत्र में लोग बात करते थे, यही प्रश्न। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम बिहार से बाहर जाते हैं और अगर हम ये भी बोलते हैं कि हम बिहार से हैं, बेसिकली हम अपना लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ हमें थोड़ा सा अलग नज़र से देखा जाता है और होता है ना, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर हम अपना बिहार का लैंग्वेज बाहर में यूज़ कर रहे हैं, तो हमें प्राउड तो होता है कि हम अपना लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बट लोग हमें उस सेंस से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये आ जाता है कि
हम बोले कि ना बोले ऐसा, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू। हम तो बम्बई भी गेलियो है, दिल्ली भी गेलियो है, कलकत्ता भी गेलिए है। उनकर के अपन अपन भाषा है। कजे के भाषा मराठी है, कजे के भाषा बंगला है। लेकिन मगही में हम जब कुछ कुछ बात के लिए है तो उनका समझे में दिक्कत नहीं होले। आई मन में जो हीन भावना बनेले हो कि हम अपन क्षेत्रीय भाषा में, ऐसा तो एगो जरूर है कि हिंदी तो हम जाने ही। हिंदी कहीं भी अगर हिंदुस्तान में बोलो तो शायदे कोई जगह छोड़ करके तोरा बोले बतियाए में कोई दिक्कत नहीं हो, तो कतनों दूर हिंदुस्तान में चल जा। और हिंदी में हमार सभे बिहार के और देश के जे भाषा है वो एकरा में मिलल जुलल है। इस एगो ऐसन भाषा हम क्षेत्रीय भाषा से ले करके देश के राष्ट्रीय भाषा के कल्पना कर रही है। जे एक देश आ एक भाषा होबे के चाहिए, वो भाषा तोहरा पास हो। अगर हिंदी में तो बोल लेहा आ हिंदी में समझ लेहा तो ओकरा में क्षेत्रीय भाषा के भी योगदान है। हमरा लगो कि तोरा कोई वहाँ दिक्कत नहीं हो। तो हम तनी सा चाहबो हास विलास के बाद मगही या क्षेत्रीय भाषा में एगो खूबी है। एक दिन पुलिस कप्तान हलथिन हमरा पांडे जी नालंदा में। अब एक बड़का वो टाउन हॉल में हो रहा कार्यक्रम और वह मंच संचालन कर रखिन है। खूब उर्दू के बढ़िया बढ़िया शायर, अंग्रेजियों के कविता पढ़े वाला, हिंदी के कविता पढ़े वाला खूब पढ़लखिन। हमर नाम अले तो हमर नाम अले तो हम हलिए धोती पहन ले, धोती पहन ले, कुर्ता पहन ले, ढेकवा हमर खुल गए। बड़ी हसोड़ आदमी हलथिन पांडे जी, कप्तान हलथिन यहाँ के। तो गुप्तेश्वर पांडे वो कहलखिन कि देखा इतने बड़गर बड़गर कवि कुल हला, अब ये असली कवि हथुन जिनकन अपन कपड़ा भी अपन बस में नहीं है। जैसे जनक के देह अपन बस में नहीं हली, जानकी के जे पिता हलथिन वो पूजा पाठ यज्ञ ने वो अपने आप में इतना मस्त रहलथिन कि बड़का संत बड़का बड़का योगी से गृहस्थ जीवन में रह करके बड़ा ऊंचा पद पेलथिन धर्म के क्षेत्र में। तो हम एगो मुक्तक पढ़ाइयो जरीसा ओकरा से हंस जेबा। देखो माय के बच्चा कते प्यारा हुआ है। बच्चा जब झुंझला है तो मैया तंग हो जाए आ तंग होकर के ओकरा डांटो है आ तब लगा है कि बुतरुआ के कुछ हो तो नहीं गेल काल डांटनु। काने तो बुतरुआ के चुप करे तो माय, काने तो बुतरुआ के चुप करे तो माय जर रहा मरियो नहीं जाए कि बुतरुआ के आ जाए छीक मैया छटन जियो। सनसन आधी रात, सनसन आधी रात भन भन मच्छर कैले हो अनोर। सनसन आधी रात भन भन मच्छर कैले है अनोर। हे कागा कोयलिया तनी बोल, मच्छर भमोरले है कखने होबत भोर। मच्छर भमोरले है कखने होबत भोर। ये मुक्तक है, मगही में एकरा मुक्तक कहे। हिंदी वाला लोग एकरा छनिका, हम छनिकाएं कहते हिंदी वाला लोग, हम मगही में एकरा मुक्तक कहे। एक सांस में कुछ बात ले वो कवित बन के निकल गई। मगही लोग उमेश जी के लिए ताली नहीं बजाएंगे क्या? साबित हो गया ना कि हमारे समधियाना के लोग भले ही दाढ़ी पक जाए लेकिन जवानी जाती नहीं है। हाँ, एक उस बच्ची ने जो पूछा है, बउआ युवा वर्ग यदि आप अपनी भाषा बोलते हैं और आपका प्रश्न था कि मुझे हीन भावना नहीं होती है, मैं तुरंत उस पर आता हूँ। पहले सर का सवाल अनुत्तरित रह गया। सर, सिंदबाद का दादा कौन था, उस दादा का दादा कौन था, छोड़िए गोली मारिए इन बातों को। जब जागो तभी सवेरा। आज से हम जाग गए। आप ही कोशिश कीजिए, पता के दुनिया को बता दीजिए कि 7000 साल पहले मगही किस लिपि में लिखी जाती थी। आप ही मेहनत कर दीजिए, मगही आपका बहुत गुणगान करेगी। ठीक है? हाँ बउआ, तोहर सवाल के जवाब हो। हमर प्रति प्रश्न ये हो,
बॉलीवुड में मान लो जे जन्ने फिल्मी हीरो हीरोइन सबके घर है, ओन्ने सुंदर सुंदर महिला सब अपन डेंटिंग पेंटिंग मेकअप क के सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के बढ़िया से क के जाइत होतई। उ बीच में तू अपन यदि माई के साथ घूम तो तोरा हीन भावना होतो न होतो। ई बात यदि दिल में रखब तो दुनिया के कोनो मंच पर बजिका बोले में, चाहे मगही बोले में या अंगिका बोले में या अपन मातृभाषा बोले में तोरा कोई हीन भावना न होता। ई बात के हमेशा ध्यान में रखा। अंतिम बात तू स युवा हत, हियाँ के आयोजक लोग के हम शत शत अभिनंदन करे छी कि तोरा स के हियाँ बोला के बैठैलन काहे। दैहिक बल और नैतिक बल से समय की गाड़ी चलती है। दैहिक बल और नैतिक बल से समय की गाड़ी चलती है। इतिहास उधर ही मुड़ता है जिस ओर जवानी चलती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। और उस बच्ची के सवाल को मैं और थोड़ी एक लाइन में बोलूँगा कि यू शुड नॉट फील हेजिटेंट। जहाँ भी जाएँ अपनी मातृभाषा में बात करें। भाषा की कोई सरहद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, और यू शुड फील प्राउड। अगर हम इंटेलेक्ट की लेवल पे चलेंगे तो बिहार की धरती ने बहुत बड़े बड़े लोग दिए हैं। अगर आईएएस आप देखेंगे तो वो भी ज़्यादातर बिहार के लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो भाषा इज़ नॉट ए बैरियर, कोई बैरियर नहीं है। आप कहीं भी रहे, दिल्ली में रहे, अपनी भाषा पे प्राउड करें और ये करें। मैं 15 साल मैंने कहा अमेरिका में जब डाइनिंग टेबल पे बैठ के दो बंगाली आपस में बंगाली में बात करना शुरू कर देते हैं तो वो मातृभाषा की पकड़ है, पहचान है और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो हम अपनी मातृभाषा में अपने फीलिंग इमोशंस को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर द वेरी वंडरफुल सेशंस। Thank you for patience listening, and I'm sorry for not taking all your questions. Thank you. Sorry for that.